السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں احسان اور آج ہمارے پاس ٹاپک آف ڈسکشن پھر سے انزائم کلاسیفیکیشن ہے، پارٹ 2 ہے اور آج ہم انزائمز کو کلاسیفائی کریں گے آن دا بیسس آف سبسٹریٹ، آن دا بیسس آف سبسٹریٹ. ٹھیک ہے، پارٹ 1 میں ہم نے انزائم کو کیسے کلاسیفائی کیا تھا؟ انزائمز کو کلاسیفائی کیا تھا آن دا بیسس آف ٹائپ آف ریئیکشن، جس میں 6 میجر کلاسز تھی او ٹی ایچ لیل، اور ابھی پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اور کلاس بھی ایڈ ہو چکی ہے 2018 میں، جو کہ ہمارے پاس ٹرانسلوکیزز کی تھی. تو آن دا بیسس آف ٹائپ آف ریئیکشن ہمارے پاس کیا تھے؟ آکسیڈو ریڈکٹیزز تھے، ہمارے پاس ٹرانسفریزز تھے، ہائیڈرولیزز تھے، لائیزز تھے، اس کے بعد آئسومریزز تھے، لائگیزز تھے، اور آخری والا ٹرانسلوکیزز تھا جو کہ بک میں مینشن نہیں تھا. آج ہم کریں گے آن دا بیسس آف سبسٹریٹ کہ سبسٹریٹ کے انزائم کس سبسٹریٹ کو کیٹالائز کر رہے ہیں، اس کے بیس پہ انزائم کو بھی کلاسیفائی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت ایزی ہے کیونکہ سبسٹریٹ کے جو اگر براڈ کیٹیگریز میں ہم دیکھیں تو 4 ہی کیٹیگریز بنتی ہیں کہ آیا وہ سبسٹریٹ پروٹین ہے، آیا وہ سبسٹریٹ کاربوہائیڈریٹ ہے، آیا وہ سبسٹریٹ لپڈ ہے، یا آیا وہ سبسٹریٹ نیوکلک ایسڈ ہے. یہ 4 براڈ کیٹیگریز ہیں، تو اسی کے بیس پہ پھر انزائمز کو بھی کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. سو آن دا بیسس آف سبسٹریٹ ہمارے پاس 4 کیٹیگریز بنیں گی. کس کی؟ 4 کیٹیگریز بنیں گی ہمارے پاس انزائمز کی. کون کون سی؟ ایک ہمارے پاس آن دا بیسس آف پروٹینز ہوں گی. تو پروٹینز کے بیس پہ جو ہمارے پاس انزائمز ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے پروٹیزز. کیا ہوں گے؟ پروٹیزز. ایسے انزائم جو کہ پروٹین کو کیٹالائز کریں ان کو بولتے ہیں پروٹیزز. کیا بولیں گے؟ پروٹیزز. اس کے بعد ایسے والے ہمارے پاس انزائم جو کہ لپڈز کو کیٹالائز کریں، لپڈز پہ ورک کریں، لپڈز پہ فنکشن کریں، اس کو بولتے ہیں لائپیزز. کیا بولتے ہیں؟ لائپیزز. پھر اس کے بعد ایسے والے کیا کہتے ہیں اسے؟ انزائمز جو کہ کاربوہائیڈریٹس پہ ایکٹ کریں اس کو بولیں گے کاربوہائیڈریزز. بڑے بڑے نام، کاربوہائیڈریزز. اور جو نیوکلک ایسڈ پہ ہمارے پاس ایکٹ کریں اس کا نام گیس کرو کیا بنے گا؟ اس کا نام بنے گا نیوکلیزز. کیا بولیں گے؟ نیوکلیزز. تو یہ 4 براڈ کیٹیگریز بنتی ہیں آن دا بیسس آف سبسٹریٹ انزائمز کی: پروٹیزز، لائپیزز، کاربوہائیڈریزز اور نیوکلیزز. پروٹیزز مطلب جو پروٹین پہ کام کرے، جو پروٹینز کے بڑے بڑے مالیکیولز کو چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں، اسمال پولی پیپٹائڈز میں یا پیپٹونز میں کنورٹ کریں اس کو بولتے ہیں پروٹیزز. یہاں پہ بک میں ایک نام مینشن ہوا ہے پیپٹونز کا، تو یہ تھوڑا سا جو ڈفرنس ہے وہ اس کو دیکھ لو، یا پیپٹونز سمجھ لو کہ پیپٹونز کیا بلا ہے. کیا ہمارے پاس پیپٹونز کیا بلا ہے؟ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ایک جگہ پیپٹونز ہوتے ہیں، پھر اسمال پیپٹائڈز بھی ہوتے ہیں. تو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں تقریباً سیم ہیں، اور واقعی میں تقریباً سیم ہے لیکن ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوتے پیپٹونز اور اسمال پیپٹائڈز. اسمال پیپٹائڈز ہمیں پتہ ہے کہ جب پروٹین کا لانگ پولی پیپٹائڈ ہوتا ہے تو اگر اسے تھوڑے نیچے جب آرگنائزیشن آف پروٹین میں جاتے ہیں کہ جو 40-50 امینو ایسڈز کے ایک چین سی بنے گی اس کو پیپٹائڈ بولتے ہیں، پیپٹائڈ چین بولتے ہیں یا اسمال پیپٹائڈ بولتے ہیں. لیکن پیپٹونز کیا بلا ہے؟ پیپٹونز یاد رکھنا کہ جب ہم کسی پروٹین پہ ایک بہت بڑی جو پولی پیپٹائڈ چین ہے، بالفرض یہ ایک بہت بڑی پولی پیپٹائڈ چین ہے، تو یہ پولی پیپٹائڈ چین پہ جب ہم پروٹیز انزائم ڈالیں گے، پروٹیزز انزائم، تو وہ انزائم ایگزیکٹلی ہر 50 کے بعد، ہر 50 امینو ایسڈ کے بعد کٹ نہیں لگائے گا. یاد رکھنا وہ انزائم جہاں جہاں اس کو جگہ ملے گی وہاں پہ کٹ لگا. بالفرض ایک کٹ اس نے یہاں پہ لگا دیا، دوسرا یہاں پہ لگا دیا، تیسرا ادھر لگا دیا، چوتھا ادھر لگا دیا، پانچواں ادھر لگا دیا، کچھ ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، چھوٹے بڑے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا لینتھ میں بن رہا ہے، بڑا لینتھ میں بن رہا ہے، لیکن وہ بڑے پیپٹائڈ کو چھوٹے چھوٹے پیپٹائڈز میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پیپٹائڈز ہوں گے، جیسے کہ یہ والا ہو گیا، جیسے کہ یہ والا ہو گیا، جیسے کہ اب یہ تھوڑا بڑا ہے لیکن یہ والا ہو گیا، یہ والا ہو گیا، یہ جو چھوٹی چھوٹی چینز ہوتی ہیں ان چینز کو ہم بولیں گے پیپٹونز. کیا بولیں گے اس کو؟ پیپٹونز. سمجھ آ گئی؟
कि पेप्टाइड जो है वो भी लेंथ पे ही है, लेकिन स्मॉल पेप्टाइड जो है वो तकरीबन 40-50 अमीनो एसिड्स के तो होने चाहिए, तब उसको स्मॉल पेप्टाइड्स बोलते हैं। लेकिन जब एक बड़े प्रोटीन पर प्रोटीएजेज एंजाइम्स आते हैं तो वो एंजाइम्स उसको जहां जगह मिलती है वहां से काटते हैं, उसको क्लीवेज करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो कुछ लेंथ में बड़े पेप्टाइड मिल जाते हैं, कुछ छोटे पेप्टाइड मिल जाते हैं, कुछ दरमियाने मिल जाते हैं, जिस तरह के भी। लेकिन वो क्लीवेज के बाद जो हमें पेप्टाइड्स मिलते हैं उनको पेप्टॉन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेप्टॉन्स बोलते हैं। तो अब हो सो कि ये समझ आ गई कि पेप्टॉन्स जो है वो क्या बला है। अब आते हैं हम वापस से बुक की तरफ, प्रोटीएजेस की तरफ। ठीक है, प्रोटीएजेस में हमारे पास कई तरह के एग्जांपल्स होंगे जो कि यूज होंगे। तो उसमें से सबसे पहले याद रखना एक एंजाइम्स है, ये एमसीक्यूज के हवाले से ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जैसे पेप्सिन है, क्या है? पेप्सिन है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको रिलीज करता है, हमारे स्टमक में ये रिलीज होता है, पेप्सिन हो गया। इसी तरह एक और है हमारे पास ट्रिप्सिन। ये दो एंजाइम, ये बड़ा पतला लिख रहा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं किधर गया, बस यही ठीक है। ठीक है, पेप्सिन हो गया या ट्रिप्सिन हो गया हमारे पास। अब ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये दोनों प्रोटीएजेस हैं। ये दोनों जो है वो बड़ी प्रोटीन्स को छोटी प्रोटीन्स या पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पेप्सिन हो गया या ट्रिप्सिन हो गया, ये हमारे पास ट्रिप्सिन, इसको पैंक्रियाटिक पेप्सिन भी बोलते हैं, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है क्योंकि इसको पैंक्रियाज रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, वहां पे एक्टिव होता है। इसको हम डाइजेशन में फिर इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये पेप्सिन या ट्रिप्सिन, ये भी एग्जांपल है हमारे पास, पहली एग्जांपल है अगर बिलफर्ज ये प्रोटीएजेस की। तो ये पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है? ये बड़ी प्रोटीन्स को, किसको? प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट करता है पेप्टॉन्स में। पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या काम करते हैं? वो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं पेप्टॉन्स में। अभी हमने बात की कि पेप्टॉन्स क्या बला है। उसके बाद जब ये पेप्टॉन्स बनते हैं तो इन पेप्टॉन्स पे फिर और अमीनो और एंजाइम्स आते हैं, वो भी प्रोटीएजेस होते हैं, लेकिन वो इन पेप्टॉन्स को मजीद छोटा करेंगे। मतलब वो जो छोटे छोटे लेंथ वाले बने थे, अब उसको और भी हमारे पास छोटा किया जाएगा। तो फिर इन पेप्टॉन्स को, किसको? इन पेप्टॉन्स को कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स में। किसमें? डाइपेप्टाइड्स में। मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास बहुत बड़ी प्रोटीन थी, क्या थी हमारे पास? बहुत बड़ी प्रोटीन थी। इस प्रोटीन के जगह जगह पे कट लगे, पेप्टॉन्स बने। क्या बने? पेप्टॉन्स बने। अब ये जितने भी पेप्टॉन्स बनेंगे, अब ये बिलफर्ज में ये एक पेप्टॉन उठाता हूं, इस पेप्टॉन को मैं यहां पे बना रहा हूं, एक पेप्टॉन उठा लिया, तो हमेशा इसका एक सिरा जो होगा वो एन टर्मिनल होता है, दूसरा सी टर्मिनल होता है। मतलब एक सिरे पे हमारे पास हमेशा नाइट्रोजन का ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा, उसी के दूसरे हिस्से पे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो इस तरीके से एक एन टर्मिनस होता है, एक सी टर्मिनस होता है, एक को अमीनो टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे को कार्बोक्सी टर्मिनल बोलते हैं। ऐसा ही है। तो अब ये छोटे पेप्टॉन्स है, इन पेप्टॉन्स को भी टुकड़े करके डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? डाइपेप्टाइड्स में, जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो या 3 अमीनो एसिड्स हो, मतलब इसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो हमारे पास एक होता है अमीनो पेप्टाइडेज। क्या है? अमीनो पेप्टाइडेज। और एक है हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये दोनों जो नाम है ये बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अमीनो पेप्टाइडेज हो गए या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गए, ये दोनों पेप्टॉन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, इतना लिखा हुआ। लेकिन अमीनो पेप्टाइड क्या करता है? अमीनो पेप्टाइड वो वाले एंजाइम्स होंगे जो कि इस पेप्टॉन को एन टर्मिनस से काटेंगे। किस तरफ से? एन वाली तरफ से काटेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को, तो वो हमारे पास अमीनो पेप्टाइड्स होंगे। अब इसी के बरक्स अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को देखें तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो इस चेन को कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ से काटेंगे दोनों उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फर्क इतना पता होना चाहिए, अमीनो पेप्टाइडेज जो एन टर्मिनल होता है, जो अमीनो टर्मिनल ऑफ द डाइपेप्टाइड पेप्टोन होता है या पॉलीपेप्टाइड होता है, उस तरफ से काटता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज उसको कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ से काटेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं, इन डाइपेप्टाइड्स को भी छोटा छोटा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना बेसिकली ये प्रोटीएजेज, तो अब वो उन्होंने अमीनो एसिड्स तो निकालने हैं, अमीनो एसिड्स निकलेंगे तो उसके बाद उन अमीनो एसिड को बाकी काम में यूज किया जा सकता है। तो इन डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो
एसिड्स में। तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए किनको, डाइपेप्टाइड्स को, उनके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है एरिप्सिन। क्या होता है, एरिप्सिन। नाम याद रखो, ये जो कुछ नाम है, अमीनो पेप्टाइडेज क्या करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, एरिप्सिन क्या करता है, इसके फंक्शन भी निकल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। ये सारे प्रोटीएजेस हैं, चाहे पेप्सिन हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, चाहे हमारे पास अमीनो पेप्टाइडेज हो, चाहे हमारे पास एरिप्सिन हो, या भी कोई और भी हो, ये हमारे पास एंजाइम्स क्या करते हैं। अब हमने सीक्वेंस में पढ़ा, सबसे पहले पेप्सिन ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर अमीनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आते हैं, वो पेप्टान्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर एरिप्सिन आता है, एरिप्सिन डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो होप सो कि अभी ये पता चल गया होगा इसमें जो हमारे पास पेप्टोन्स वाला और अमीनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसका और इससे जो फंक्शन है वो समझ आ गए होंगे कि इनका बेसिकली काम क्या है। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास है, क्या है हमारे पास, प्रोटीएजेस हैं। और प्रोटीएजेस कौन से एंजाइम्स होंगे, ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि प्रोटीन को क्लीवेज करें, प्रोटीन पे फंक्शन करे, उसको बोलते हैं प्रोटीएजेस। और ये ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट हो गए, ठीक है। तो यहां से प्रोटीएजेस के बारे में हमने क्या क्या बात सीखी, प्रोटीएजेस के बारे में हमने देखा कि हमारे पास प्रोटीन को करते हैं, हमारे पास डाइजेस्ट या क्लीवेज जो भी करते हैं। एग्जांपल में इसकी क्या क्या थी, हमारे पास पेप्सिन था और ट्रिप्सिन था। ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अमीनो पेप्टाइडेज, क्या आते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये दोनों क्या काम कर रहे थे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये दोनों क्या काम कर रहे थे, ये दोनों काम कर रहे थे कि जो पेप्टोन्स है उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। और उसके बाद एरिप्सिन आता है, एरिप्सिन का काम करता है, एरिप्सिन हमारे पास डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। समझ आ गई। उसके बाद अगली कैटेगरी है लाइपेजेस की, ठीक है। लाइपेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन कह रहा हूं, जो लिपिड को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है, क्या हमारे पास है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज उसको रिलीज करेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज बेसिकली क्या करता है, ये जो भी लिपिड हम खाते हैं उस लिपिड को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में, जो कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, फैटी एसिड्स में और साथ में ग्लाइसरॉल में, ठीक है। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, ये हम वो फैटी लिपिड्स वाले जो हमारे पास पोर्शन उसमें कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लिपिड को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह वो जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हैं लाइपेजेस, जो कि बेसिकली लिपिड्स पे एक्ट करते हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, लाइपेजेस बन जाते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी है हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस की। अब ये भी नाम से पता चल रहा होगा, कार्बोहाइड्रेजेस कौन क्या काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस हमारे पास काम करेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लीव करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। बड़े बड़े जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। सेम जैसे कि हमने प्रोटीएजेस के लिए सीक्वेंस अडॉप्ट किया था, वही सीक्वेंस जो है हम वो कार्बोहाइड्रेजेस के लिए भी अडॉप्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर पॉलीसैकेराइड वाली फॉर्म देखें तो वो हमारे पास कौन सी बनती है, एक हमारे पास है स्टार्च, क्या है हमारे पास, यहां से कर रहा हूं, एक हमारे पास स्टार्च है, या फिर हमारे अंदर जो होती है वो ग्लाइकोजन है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन, ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। स्टार्च समझ जाओ ये आटा ही है और कुछ नहीं है। तो स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, इस पे एक एंजाइम आता है हमारे पास अमाइलेज। कौन सा वाला एंजाइम, अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च या ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, डाइसैकेराइड है एक, ठीक है। पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में ले आए, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन सा वाला एंजाइम, अमाइलेज। तो यहां से ये चीज याद रखो, एक एंजाइम हमें पता चल गया वो है अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। फिर इस माल्टोज को, किसको, इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है जो कि मोनोमर है।
ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और इस यहां पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है माल्टेज। क्या होता है हमारे पास? माल्टेज। तो एक अमाइलेज स्टार्च या ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा था? माल्टोज में। फिर माल्टेज एंजाइम आता है, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। तो दो हमारे पास एग्जांपल्स ये हो गई, अमाइलेज और माल्टेज, किसकी? कार्बोहाइड्रेजेस की। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्या है? हमारे पास एक और पॉलीसैकेराइड है, कौन से वाला? सेलुलोज। क्या है मेरे पास? सेलुलोज। तो ये सेलुलोज जो है एक डाइसैकेराइड होता है, सेलुबायोज या सेलुबियोज। ठीक है। तो सेलुलोज कन्वर्ट होता है सेलुबायोज में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड सेलुलेज, विच इज ए सेलुलेज। अब तुम लोगों के लिए एक टास्क है कि ये बताना है कि ये सेलुलेज जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या सेलुलेज प्रेजेंट है कि नहीं है? ये टास्क तुम लोगों के लिए, सर्च करके कमेंट में बता दो कि है या नहीं है। ठीक हो गया। तो सेलुलोज कन्वर्ट होता है सेलुबायोज में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सेलुलेज। तो कार्बोहाइड्रेजेस के एक और एग्जांपल आ गई हमारे पास, सेलुलेज। क्या आ गई? सेलुलेज। इसी तरीके से एक और डाइसैकेराइड है जिसको कहते हैं सुक्रोज, चीनी, टेबल शुगर। ये जो चीनी तुम लोग चाय में डालते हो, जो चीनी तुम यूज करते हो, टेबल शुगर, ये टेबल शुगर जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज में। किस में? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होता, इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है सुक्रेज। कौन से वाला? सुक्रेज। सो सुक्रेज हमारे पास क्या हो गया? सुक्रेज हमारे पास एन अदर एंजाइम हो गया कार्बोहाइड्रेजेस के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और डाइसैकेराइड है लैक्टोज। क्या है हमारे पास? लैक्टोज। ये लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो ये इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो अल्लाह आपके बच्चे बड़े करे, कौन सा होगा? क्या? लैक्टेज होगा। क्या होगा हमारे पास? लैक्टेज। तो लैक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो यहां से कार्बोहाइड्रेजेस के थोड़े बहुत फंक्शन ये एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता चल गए कि कई एंजाइम्स होंगे जो कि इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जो कि मुख्तलिफ किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्तलिफ चीजों में कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पे भी एंजाइम को जो कैटेगराइज किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट है। जैसे कि सेलुलेज है वो सेलुलोज पे काम कर रहा है, सुक्रेज है वो सुक्रोज पे काम कर रहा है, इसी तरह लैक्टेज है वो लैक्टोज पे काम कर रहा है, इसी तरह अमाइलेज है वो स्टार्च पे काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास और क्या था? और हमने क्या कहा था? अमाइलोज के बाद माल्टेज है वो माल्टोज पे काम कर रहा है। तो ये सारी एग्जांपल्स बन जाती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस की। इनकी एग्जांपल्स बन जाती हैं कार्बोहाइड्रेजेस की। तो अगर इसको हम एक जगह पे लिखें तो कार्बोहाइड्रेजेस में क्या क्या है हमारे पास? क्या क्या है? पहले अमाइलेज था, अमाइलेज ने क्या किया? अमाइलेज ने हमारे पास स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट किया। उसके बाद माल्टेज आया, माल्टेज ने क्या किया? माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से सेलुलेज जो आया, सेलुलेज ने सेलुलोज को सेलुबियोज में कन्वर्ट कर दिया। फिर आया हमारे पास सुक्रेज, सुक्रेज क्या करता है? वो हमारे पास सुक्रोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से हमारे पास लैक्टेज है, लैक्टेज क्या करता है? वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो ये हो गई। उसके बाद आखिरी कैटेगरी हमारे पास रह जाती है न्यूक्लियेजेस की। अब ये भी हमें नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियेजेस कौन से एंजाइम्स होंगे? ऐसे एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड पे काम करें, न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करें, तो वो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियेजेस। और इसमें हम न्यूक्लिक एसिड की बड़ी बड़ी एग्जांपल्स में हमारे पास तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीएनए, जैसा कि आरएनए और जैसा कि एटीपी। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड की बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो अगर इनमें देखते हैं न्यूक्लियेजेस में, तो न्यूक्लियेजेस में जो एंजाइम्स फॉल करेंगे वो हमारे पास एक है डीएनएजेस, डीएनएजेस। ठीक है, मतलब ये डीएनए को चॉप अप करेंगे, डीएनए को काटेंगे। क्या करेंगे? डीएनए को काटेंगे। अब इसमें फिर आगे पोर्स है, एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है, वो अपर लेवल पे, उसको भी छोड़ दो। डीएनएजेस जो है वो बेसिकली क्या करते हैं?
वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को चॉप अप करते हैं, उनको काटते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। इसी तरीके से आरएनएजेस भी है। आरएनएजेस क्या होंगे, वो भी ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं, लेकिन वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को चॉप अप करेंगे, उनको काटेंगे, उनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, डीएनएजेस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, आरएनएजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। दोनों में फर्क क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है उस न्यूक्लियोटाइड के राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता। यहां पे कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहां पे कार्बन नंबर 2 पे किसके, राइबोज शुगर के ऑक्सीजन होता है। ये दोनों में फर्क है। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह की एक और एग्जांपल है हमारे पास एटीपीएजेस। एटीपीएजेस भी नाम से पता चल रहा है, जो कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगे। अब एटीपी हाइड्रोलाइसिस जो है बेसिकली, अगर एक एग्जांपल बता दें तो हमारे मसल्स क्योंकि हमेशा काम कर रहे हैं तो इनको एनर्जी चाहिए होती है, तो जब भी इनको एनर्जी चाहिए होती है तो ये क्या करते हैं, ये जो एटीपीएजेस होते हैं वो बॉडी में मौजूद एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने लिए यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, जिसमें 4 बड़ी कैटेगरीज थी। हमारे पास कौन कौन सी थी, हमारे पास प्रोटीएजेस हैं, हमारे पास लाइपेजेस हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस है, और हमारे पास न्यूक्लिएजेस हैं। प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि प्रोटीन पे एक्ट करें, उसके बाद लाइपेजेस ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि लिपिड्स पे काम करें, उसके बाद कार्बोहाइड्रेजेस ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करें, और न्यूक्लिएजेस ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि न्यूक्लिक एसिड पे काम करें। प्रोटीएजेस की कई एग्जांपल्स हमने देख ली, जैसा कि हमारे पास क्या था, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अमीनोपेप्टाइडेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, इरिप्सिन है, इस तरह की कई एग्जांपल। उसके बाद लाइपेजेस में हमने एक एग्जांपल देखी पैंक्रियाटिक लाइपेज की। उसके बाद कार्बोहाइड्रेजेस में हमने कई एग्जांपल्स देखी, जैसे कि अमाइलेज है, जैसे कि माल्टेज है, जैसे कि सेलुलेज है, उसके बाद और क्या है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, और भी कई तरह के हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही है, ये तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद न्यूक्लियेजेस के हमने एग्जांपल्स जो देखी, न्यूक्लियेजेस में हमारे पास डीएनएजेस हैं, आरएनएजेस हैं और एटीपीएजेस हैं। तो होप सो के क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।